السلام علیکم کلاس 5۔ آج ہم سب اردو کی کتاب شان اردو پڑھیں گے، تو آپ سبھی بچے اپنی اپنی کتابیں کھول لیں۔ سبق نمبر 2، سندباد جہازی، پیج نمبر 7۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے اس سبق کو پڑھا تھا اور یہ اس بات کو جاننا بھی تھا کہ سندباد جہازی کون تھا۔ وہ ایک سوداگر تھا اور وہ اس کی زیادہ تر زندگی کا جو وقت تھا وہ جہاز پر ہی گزرا، اس لیے اس کے نام کے ساتھ جہازی لگ گیا تھا۔ اور وہ اکثر جہاز پہ پانی کے ذریعے وہ جاتا تھا اپنے، جبکہ سوداگر تھا تو وہ اپنے سامانوں کو خریدنے اور بیچنے کے لیے جزیرے پہ جاتا رہتا تھا۔ اس کا جہاز چلتا رہتا تھا، جہاں جزیرہ دیکھتا تھا وہاں پہ اس کے جہاز جو تھا وہ رک جاتا تھا، پھر وہاں پہ خرید فروخت کا وہ کام کرتا تھا، پھر وہ وہاں سے چل دیتا تھا۔ اس طرح سے اس کی زندگی جو ہے تو وہ پانی کے جہاز میں ہی زیادہ تر گزری، اس لیے اس کا نام سندباد جہازی پڑ گیا تھا۔ تو ہم انہی کے بارے میں پڑھ رہے تھے اس سبق میں، اور کس طرح سے وہ ایک بار ایک جزیرے پہ گئے اور وہاں پہ وہ اکیلے رہ گئے۔ ان کے جو ساتھی تھے جو کہ ان کے ساتھ جاتے تھے وہ وہاں اس جزیرے پہ یہ گئے تو وہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی اور یہ بہت تھکے ہوئے تھے، تو وہاں پہ وہ آرام کرنے کے لیے تھوڑا ٹھہر گئے۔ اور آرام کرنے کے لیے کیا ٹھہر گئے کہ ان کی آنکھ لگ گئی، یہ سو گئے تھے، تو اتنی ہی دیر میں ان کے ساتھی جو ہیں تو وہ جہاز لے کر چلے گئے تھے اور وہ وہاں اکیلے رہ گئے تھے۔ پھر ان کی نظر جو ہے تو وہ ایک گول سی چیز پہ پڑی، تو وہ پھر اس کو جاننے کے لیے اس کے پاس گئے، تو تب تک دیکھتے ہیں کہ اوپر سے ایک پرندہ، ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور اس انڈے کے پاس بیٹھ گئی۔ تو تب ان کو پتہ چلا کہ ہاں یہ انڈا ہے، اس چڑیے کا یہ انڈا ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہاں سے نکلنے کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، تو انہوں نے ایک ترکیب لگائی کہ اس پرندے کے جو وہ چڑیا تھی اس کو کیا کیا کہ اپنے پگڑی کھولی اور انہوں نے اپنے آپ کو اس کے پیر سے باندھ دیا، تاکہ یہ کبھی تو اڑے گا، یہ جب اڑے گا تو میں اس کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤں گا اور جہاں سیف رہے گا خود کو محسوس کریں گے وہاں پہ ہم اتر جائیں گے۔ تو ویسے ہی کیا انہوں نے۔ تو کیا ہوا کہ ہاں یہ اڑا، چڑیا جو تھی وہ اڑی، پرندہ، اور کہاں پہ ایک گھاٹی میں اترا، اور زمین پر اترتے ہی پرندے نے لپک کر اپنی چونچ میں ایک بہت بڑا سانپ پکڑا۔ تو جو تھا تو آسمان کی طرف پہلے تیزی سے چلا گیا پرندہ، پھر اس نے تیزی سے نیچے بھی آنا شروع کر دیا، اور یہ اس کے پیر سے بندھے ہی تھے، اپنے آپ کو باندھے ہوئے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ وہ تیزی سے نیچے اترا، اس کی نظر جو ہے تو ایک سانپ پر پڑی تھی اور بہت بڑا سانپ تھا، اس کو پکڑ لیا، اس پرندے نے اس سانپ کو پکڑ لیا۔ پھر وہ اڑنے ہی والا تھا، تب تک سندباد کو لگا کہ ہاں اب یہاں اس ٹاپو پہ میں اس جہاں پہ جزیرے پہ آ گیا ہوں، تو یہاں سے ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل جائے۔ اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو اس کے پیر سے کھول لیا۔ پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے، آج ہم یہاں سے پڑھیں گے سبق۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کھائی بہت گہری تھی، چاروں طرف بہت اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ سندباد راستے کی تلاش کرنے چلا تو اسے دور تک ہیرے ہی ہیرے بکھرے نظر آئے۔ یہاں بڑے بڑے اژدہے بھی تھے جو آدمی کو نگل جاتے ہیں۔ اژدہوں سے بچنے کے لیے اس نے ایک غار ڈھونڈ لیا، یعنی کہ سندباد اپنے آپ کو اس پرندے کے پیر سے تو کھول لیا، لیکن پھر چلتے چلا گیا اور راستہ ڈھونڈ رہا تھا وہ کہ اسے ایک بہت گہری کھائی، وہاں پہ گہری کھائی بھی تھی جہاں پہ وہ تھا، اور چاروں طرف جو تھے تو وہ بہت بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ اور راستے کی جو تلاش تھی سندباد کی، تو دور تک جو تھے اس پہ وہ چل رہا تھا راستے پر، اور ڈھونڈ بھی رہا تھا کہ کوئی راستہ دکھے جس پہ چلتے چلتے وہ اپنے منزل تک پہنچے۔ تو کیا ہوا کہ اسے دور تک ہیرے ہی ہیرے بکھرے نظر آئے۔ ہیرا ہوتا ہے نا، جس سونا چاندی
होते हैं वैसे ही हीरा भी होता है, तो बिखरे हुए थे रास्ते में। सिंदबाद की नज़र पड़ी उन बिखरे हुए हीरों पर, और फिर उसके बाद उसने क्या देखा कि वहाँ पे अजदहे भी थे, बहुत बड़े बड़े अजदहे, यानी कि बहुत बड़े बड़े सांप, ऐसे सांप जो कि इंसानों को खड़ा निगल जाते हैं, खड़ा खा जाते हैं, और उन्हें अजदहे कहते हैं। तो उन अजदहों से बचने के लिए, उन सांपों से बचने के लिए जो सिंदबाद थे, तो उन्होंने क्या किया कि अपने लिए एक गाड़ ढूंढ लिया। गाड़ यानी कि गुफ़ा ढूंढ ली। गुफ़ा उसे बोलते हैं जैसे कि यहाँ रहने की जहाँ होती है, बिल जैसा होता है, तो वहाँ पे इंसान रह सकता है, उसे गुफ़ा बोलते हैं, उसे गाड़ बोलते हैं। तो वो ढूंढ लिया। सिंदबाद गाड़ में दाखिल हो गया और एक पत्थर से उसका मुंह बंद करके लेट गया। सांपों की फुंकार से उसे रात भर नींद नहीं आई। सुबह हुई तो वो गाड़ से बाहर आया। भूख मिटाने के लिए उसने दरख्तों के फल तोड़कर खाए। सिंदबाद जो था वो अपने आप को गाड़ में छुपा तो लिया था, ठीक है, पत्थर से उसका मुंह भी बंद कर दिया था, जिस रास्ते से वो अंदर गया था कि अजदहे जो हैं तो यहाँ ना आए। फिर लेकिन पूरी रात जो है तो अजदहों यानी सांपों की जो फुंकार थी उससे वो बहुत, मतलब उसको नींद नहीं आई। वो ज़ाहिर है कि अगर आपके आसपास कोई भी एक सांप होगा तो आपको कभी नींद आ सकती है, नहीं ना। तो फिर सिंदबाद भी तो एक इंसान ही था, उसे कैसे आ सकती थी। तो वो भी डरा हुआ था, उसने अपने आप को गाड़ में बंद तो कर लिया था, लेकिन सांपों की जो आवाज़ थी, जो फुंकार थी, वो उसके कान में लगातार जाती रही और इससे उसे नींद ना आई। फिर जैसे ही सुबह हुई तो वो सिंदबाद जो था तो वो अपनी गाड़ से बाहर निकला हिम्मत करके, और क्योंकि उसे बहुत भूख लगी हुई थी, तो भूख का इंतज़ाम तो उसे करना है ना कुछ तो खाना है, तभी तो उसकी भूख मिटेगी। और जब इंसान को भूख लगती है तो फिर उसका दिमाग भी काम नहीं करता है, और उनको अपने दिमाग से सोचना भी था कि हाँ मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, कैसे बचूँ। तो उन्होंने क्या किया कि एक पेड़ पर चले गए और चढ़ गए और फल तोड़कर खाने लगे। उसे एक चश्मा नज़र आया, वहाँ आकर उसने पानी पिया और चश्मे के किनारे बैठ गया। चश्मा यानी कि एक तालाब के जैसा था, नदी थी, तो वहाँ वो दिखी, वहाँ पे वो गए, पानी पिए और पानी पीकर फिर उसके किनारे बैठ गए, आराम करने लगे थोड़ा। फिर थोड़ी देर बाद पहाड़ों से गोश्त के टुकड़े गिरने लगे। बड़े बड़े अक़ाब इन टुकड़ों को उठाकर ले जाते, इन टुकड़ों के साथ हीरे भी चिपक जाते। इतने में पहाड़ों पर इंसानों का शोर सुनाई दिया। अब सिंदबाद समझ गया कि जवाहिरात हासिल करने के लिए लोगों ने यह तरीका इख्तियार किया है। यानी कि जब वहाँ पे वो पानी पीकर थोड़ा बैठे आराम कर रहे थे, तो इतनी ही देर में उन ऊपर से जो है तो छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगे। और वो टुकड़े किस चीज़ के थे, मतलब गोश्त के होंगे, ज़ाहिर है गोश्त के टुकड़े आसमान में से की तरफ से गिरने लगे। और बड़े बड़े उकाब, यानी कि एक परिंदा होता है जिसका नाम उकाब होता है, और वो शिकार, मतलब शिकार करके ही खाते हैं, बहुत बड़े होते हैं वो परिंदे, और वो शिकार करके खाते हैं, बहुत ही ख़तरनाक भी होते हैं। तो वो जो उकाब थे तो वो सब जो सारे परिंदे टुकड़ों को उठाकर ले जाने लगे। और इन टुकड़ों के साथ जो थे हीरे भी जो पड़े हुए थे, रास्ते में बहुत सारे हीरे जैसे कि पढ़ा हमने, तो पड़े हुए थे, तो वो उन टुकड़ों में, गोश्त के टुकड़ों में, ज़ाहिर है कि गोश्त का टुकड़ा गीला गीला होता है, तो उसमें वो हीरे जो है तो चिपक गए। तो जब वो लेकर उड़ रहे थे तो गोश्त के टुकड़ों के साथ साथ हीरे भी जा रहे थे। बस इतने में ही क्या हुआ कि पहाड़ों पर से इंसानों का शोर सुनाई दिया। सिंदबाद के कान में जो है तो अभी तक इंसानों की आवाज़ नहीं गई थी, तो उतनी ही देर में सिंदबाद के कान में जो है तो इंसानों का शोर सुनाई दिया। अब सिंदबाद जो था वो समझ गया कि जवाहिरात हासिल, यानी कि जो हीरे जवाहिरात जो थे यहाँ पे पड़े हुए थे, उनको हासिल करने के लिए लोगों ने ये तरीका इख्तियार किया है कि हाँ छोटे छोटे टुकड़े गोश्त के फेंको और उन्हें चिड़िया उकाब जो है परिंदा वो जब लेकर उड़ेगा तो उसके ज़रिए और हीरे जवाहिरात भी ज़ाहिर है बाहर आ जाएगा, पास में आ जाएगा। सिंदबाद को एक तरकीब सूझी। उसने बहुत से हीरे जवाहिरात अपनी जेबों में भर लिए और गोश्त का एक टुकड़ा उठाकर सर की पगड़ी से अपनी पीठ पर कसकर बांध दिया और लेट गया। तभी एक उकाब गोश्त के लालच में सिंदबाद पर झपटा और गोश्त को पंजों में दबाकर सिंदबाद समेट ले उड़ा। सिंदबाद को ये सब देखने के बाद जो है तो सिंदबाद को एक आइडिया आया, उसके दिमाग में तरकीब आई। तो उसने क्या किया
کہ हीरे जवाहरात जो थे अपनी जेब में उसने भर लिए, जितना हो सका उसकी जेब में आ सकते थे वो सब उसने भर लिए। फिर भरने के बाद जो है तो एक गोश्त का टुकड़ा उसने उठाया और सर की जो उसकी पगड़ी थी उसमें उसने बांध लिया गोश्त के टुकड़े को। इसलिए बांध लिया ताकि जो चिड़िया है वो मेरे सर पे गोश्त का टुकड़ा देखे और मुझे यहाँ से उठाकर ले जाए। और ठीक बिल्कुल ऐसा ही हुआ। चिड़िया गोश्त का टुकड़ा जब देखी सिंदबाद की पगड़ी पर तो वो क्या की कि झपटी। उकाब चिड़िया जो थी वो बहुत बड़ी होती है, इंसानों को उठा लेती है वो। तो क्या हुआ कि गोश्त का टुकड़ा देखकर उकाब जो है तो झपटिया और फिर गोश्त के साथ साथ सिंदबाद को भी वो ले उड़ा। उकाब अपने घोंसले में बैठ गया तो सिंदबाद ने खुद को आज़ाद किया और ज़मीन पर कूद गया। उसे गिरता देखकर लोग दौड़कर उसके पास आए। यानी कि जब मतलब उकाब चिड़िया इनको लेकर गई सिंदबाद को, फिर उसके बाद वो अपने घोंसले में बैठी। तो क्या हुआ कि सिंदबाद ने अपने आप को खोल लिया, मतलब आज़ाद कर लिया उस चिड़िया के पास से और ज़मीन पर कूद गया। घोंसले से ज़मीन की तरफ कूद गया और जब वो गिर रहा था तो लोग मतलब दौड़ कर उसके पास आए और जानने का क्या माजरा है, क्या मसला है, वो जानने की लोगों ने कोशिश की। सिंदबाद ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई और जेब से हीरे निकालकर हर एक को थोड़े थोड़े बांट दिए। लोगों को सिंदबाद की कहानी सुनकर बड़ी हैरत हुई। उन्होंने उसे अपने साथ जहाज़ में बिठा लिया। वो कुछ दिनों बाद अपने वतन बगदाद पहुंच गया। यानी कि सिंदबाद को जब गिरते देखा लोग उसके पास आए, पूछा तो सिंदबाद ने बताया सारा माजरा कि हाँ उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सबको मतलब बहुत ही हैरानी हुई और सिंदबाद की कहानी को सुनकर मतलब लोगों को दुख भी हुआ। और फिर सिंदबाद जो है तो अपनी जेब में जो हीरे भर कर लाया था वो भी मतलब एक एक को करके थोड़े थोड़े वो बांट दिए। और लोगों को जो सिंदबाद की कहानी थी वो सुनकर बड़ी मतलब हैरत हुई थी। तो उन्होंने क्या किया कि इसकी मदद करने का फ़ैसला किया। तो उन्होंने मदद कैसे की सिंदबाद की कि वो अपने साथ जहाज़ में उसको बिठा लिए और उससे सिंदबाद को उनके वतन बगदाद तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली और पहुंचा भी दिया। इस तरह से सिंदबाद जो है तो तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए आखिरकार वो अपने वतन बगदाद पहुंच ही गए। ये थी उनकी समझदारी, ये उनकी सूझबूझ ही थी जो उन्होंने ऐसा किया। पहले तो इस परिंदे के पैर से अपने आप को बांध लिया, फिर उसके बाद वो सांपों के जहाँ सांप और अजगहे थे वहाँ पहुँच गए, फिर वहाँ पे भी उन्होंने बहुत ही सूझबूझ दिखाई। इस तरह से ये था कि इंसान अगर मतलब अपनी सूझबूझ से चले, अपने दिमाग को इस्तेमाल करे तो वो हर मुश्किल को पार कर सकता है, उसके लिए हर मुश्किल आसान बन जाती है। और तो ये सबक जो है तो अब पूरा हो चुका है, इस चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसकी जो एक्सरसाइज वगैरह है ये हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप सभी बच्चे इसे पढ़ते रहिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा ये सब अपनी अपनी बुक में। और एक्सरसाइज जब मैं करवाऊँगी तो आप लोग कीजिएगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।